Hello everyone. So here is Shrishti and I am going to today take up the topic for essay writing. Now this is a part of your competitive examination paper for your mains examinations, right? Uh, First and foremost, what I would like to tell you is that on this channel I'll be discussing things that seem relevant to me from the perspective of any competitive exams, be it UPSC, state PSC, and the other exams like CDS, CAPF. So whatever suits your syllabus, you'll have to filter the topics accordingly and then decide as to whether you want to proceed with the lessons or not. So since essay writing is an important arena for your UPSC means and ये काफ़ी neglect भी किया जाता है, but what I would like to suggest is since it is a whole paper in itself like your GS1, GS2, GS3, so you should try to focus and try to get your extra marks on these, because if you're messing up here, even if you're scoring well in the GS papers, that would not make much of a difference, right? And as per the marking scheme of UPSC, you would know that you cannot score very much, like you cannot out of 250 you can't expect कि आपने बहुत अच्छा लिखा है GS2 पेपर में तो you'll get 180 या फिर 190, so that's not going to happen, right? So you'll have to maintain a balance in each of the papers, and that is why I have decided to make a topic, to make a lesson on essay writing, whereby I'll be discussing some of the myths that surround essay writing and what are the do's and don'ts that we should follow, and I'll also give you a structure as to what is the marking scheme and how can you maximize your scores in this very paper, right? A lot of people belong to Hindi background, so आगे ही when we are moving towards the slides, I'll keep explaining you as to how you're supposed to deal with this paper, and also not be afraid, plus try and write it concisely and gain the maximum marks that you can paper, right? So just a moment guys. Yeah, so now as you can see, this is my name, it's presented by me. So first and foremost, what I would like to inform you is about the nature of the paper and about its marking structure. So as you know that mains examination is held after the prelims, so in that you have GS1, GS2, GS3 papers, जिसकी detailed analysis if you want I can do it in another series, and GS4 is about ethics, alright? So all of these carry 250 marks. Apart from these four papers, you have one paper which is your essay paper. Now this essay paper is of 250 marks again, right? I'm not going to the papers that are qualifying in nature, we'll discuss about that separately. So for today you just need to know कि जैसे ही आपके GS1 जो कि हिस्ट्री वगैरह होते हैं, GS2, GS3 इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एंड ऑल द अदर टॉपिक्स दैट यू हैव, सिमिलरली यू हैव अ whole paper, whole examination devoted to essay writing, जहाँ which is also known as निबंध लिखना, right? So now what is the pattern? देखिए आपको दो ऐसे लिखने पड़ते हैं in total, okay? And this total, so that one essay will be of 125 marks each. What will be the time duration? 80 minutes each, that I have bifurcated for you, because the whole you will have total of 3 hours for the paper, right? So based on that you'll have to divide the time. So what I would suggest is give 80 minutes to both the essays and then 20 minutes for selection of topic. Now why have I told you 20 minutes for selection of topic? Because जितना ही इम्पॉर्टेंट एक ऐसे लिखना है उतनी ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एक अच्छी टॉपिक सेलेक्ट करना. कभी कभी कन्फ्यूजन में आप, बिकॉज आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, कभी कभी कन्फ्यूजन में या फिर just because you have an affinity towards a paper, you might end up selecting the wrong topic, and that will cost you your entire essay. So we are not going to do that, right? That is why selection of topic is as important as writing a good essay. That is why we'll devote 20 to 25 minutes for this. अब सिलेक्शन ऑफ टॉपिक में आपको कैसे पता चलेगा? 20 मिनट तक बस सोचते नहीं रहोगे. व्हेन यू आर लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव 5 ऑप्शंस, तो उनमें से आपको 3 में अगर कन्फ्यूजन है तो आप तीनों को एक रफ शीट में उनके फॉर्डर पॉइंट्स लिखिए. आप देखिए कि आपके कितने डायमेंशंस में आप रीच आउट कर पा रहे हो उस ऐसे के लिए. इफ़ यू आर एबल टू कवर इट होलिस्टिकली, वेल एंड गुड. इफ़ यू फील कि आपने एक टॉपिक, जैसे कभी कभी क्या होता है हमारा ऑप्शनल रहता है इंटरनेशनल रिलेशंस, कुछ भी इंटरनेशनल टॉपिक अगर आ गया या फिर समथिंग रिलेटेड टू दैट जॉनर, तो हम तुरंत से सोचते हैं कि वी हैव मोर नॉलेज ऑन दिस तो विल राइट ऑन दिस, एंड ऐसा हम सुनते भी आते हैं. बट डोंट डू दैट मिस्टेक, राइट? गिव योर सेल्फ टाइम. आप टॉपिक को अच्छे से समझिए कि व्हाट आर दे ट्राइंग टू आस्क यू, उनके पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, एंड जो भी आपके पास मल्टी डायमेंशनल व्यू है उसको
in a very short and summarized manner try to jot down in your rough sheet. So that will give you an idea कि आप कौन से टॉपिक में किस तरीके से डेल्व कर पा रहे हो, आप जिस टॉपिक पे जस्टिस कर पा रहे हो, then you got to choose that topic. Because if you choose the wrong topic, guys, I'm emphasizing on this point, because if you choose the wrong topic, half the game is already over, right? You will write few lines about it, ना आप पीछे जाते बनोगे एंड ना आप उसमें कुछ कंटिन्यू करोगे, तो आप देखोगे कि आपके पास इनफ फॉर्डर पॉइंट्स ही नहीं है उस ऐसे को कंप्लीट करने के लिए. एंड वेटेज तो आप देख रहे हो मार्क्स का, इट्स 125 मार्क्स, राइट? सो यू हैव टू राइट समथिंग that justifies, that gives justice to what you have written, okay? And it should also be interesting. क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, वो तो बाद में आता है, बट कुछ लिखने के लिए होना चाहिए. दैट इज़ द फर्स्ट एंड foremost priority. So that is why now you are aware of the marking structure and you are aware कि selection of topic is a very important concern when you are doing an essay. So we'll proceed forward. अब देखिए points to remember before essay writing. Thorough reading of all the topics given in the paper without any predetermined bias or notion. यहाँ पे मैंने यही डिस्कस किया कि जो भी टॉपिक्स हैं, हम लोग पहले से कभी कभी मन बना के जाते हैं कि मेरा पबैड वाला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरी ऑप्शनल है, उससे रिलेटेड कुछ आएगा तो आई यूज़ दोज थियोरीज एंड इतनी पढ़ाई की है मैंने तो मैं उसी को लिखूँगा. कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, आई हैव अ बैकग्राउंड इनटू इंटरनेशनल रिलेशंस, आई विल राइट दैट. डोंट डू दैट मिस्टेक. ऑल द टॉपिक्स आर वेरी कैची इन नेचर इफ़ यू लुक एट द पेपर, एंड बैलेंस रहता है बिकॉज इट इज़ जनरली अ वेरी जनरल टॉपिक, इट वोंट बी वेरी स्पेसिफिक. अगर वो बहुत स्पेसिफिक होगा तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर ऑप्शनल पेपर, ऑल राइट. एंड इफ़ द टॉपिक इज़ वेरी स्पेसिफिक, then you should also be very confident if you're opting for it, okay? So that is why thorough reading of all the topics. कुछ भी predetermined bias नहीं रखिए कि इस सब्जेक्ट में ज़्यादा पढ़ाई की है तो इसके ऐसे को अटैम्प्ट करना है. नहीं, जो भी आपको टॉपिक उस वक्त अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप उसमें लिख सकते हो, डोंट बॉदर अबाउट योर बैकग्राउंड, जस्ट गो अहेड विद इट. नाउ सिलेक्शन ऑफ डिज़ायर टॉपिक, तो ये हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है. मल्टी डायमेंशनल थॉट ओवर सेलेक्टेड टॉपिक. अब कोई एक टॉपिक होता है, आपने सेलेक्ट कर लिया, बट यू डोंट नो, यू डोंट हैव डायमेंशंस टू द टॉपिक. आप एक ही एरिया में बात कर रहे हो, एक ही पॉइंट को नेगेटिव में रख रहे हो, पॉजिटिव में रख रहे हो, तो दैट इज़ अ बिग नो नो, because you'll have to really write a lengthy matter, and for you to obtain marks, that topic should give the examiner a broad view as to what you want to convey. जैसे कि हम लोग करते हैं जीएस के आंसर्स में भी कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, हिस्टोरिकल बेसिस क्या है इनका, एथिकल बेसिस क्या है, okay, how can it affect the international economy. So all of that needs to be clearly thought of. What is its role on art and culture, any kind of thing, all the dimensions need to be taken care of. जितने dimensions आपके पास बनेंगे उतने points आप अच्छे ऐसे में डाल पाओगे. पॉइंट्स आपके पास होंगे तभी आप उसको फ्रेम भी कर पाओगे अच्छे से, राइट? नाउ रफ ड्राफ्ट ऑफ द सेम. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया गाइज. अगर मेरे पास टाइम होएगा तो मैं आप लोग को एक रफ ड्राफ्ट बना के भी दिखाऊंगी कि जब आप टॉपिक सेलेक्ट करते हो तो हाउ आर यू सपोज टू मेक अ रफ ड्राफ्ट ऑफ द सेम. बट अभी के लिए मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि बिफोर अगर आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया तो डायरेक्टली डोंट जंप टू राइटिंग राइटिंग अ फेयर ऐसे. दैट इज़ अ बिग नो नो, एंड वो कभी भी आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकोगे. इट विल किल योर टाइम एंड इट विल नेवर गिव यू मार्क्स ऑल्सो, एंड यू विल अगेन वंस यू लॉस्ट टाइम यू कांट गो बैक एंड यू कांट राइट द री ऐसे अगेन एंड अगेन. एंड जब दो ऐसे हैं ना आपके पास, तो कभी ये मत सोचना कि एक ऐसे पे ज़्यादा प्रेशर डाल करके बहुत कुछ लिख रहे हो उसमें और दूसरे टॉपिक को जल्दी जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया. वो भी एक बिग नो नो है, बिकॉज यू कांट टेक द मार्क्स ऑफ द फर्स्ट ऐसे इन द सेकेंड ऐसे, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स वो लोग को देना है नहीं. तो you can't make that difference, you can't fill that difference, okay? You have to write both in a decent manner. Hence what I'll suggest you to do is कि जब आप टॉपिक के लिए सिलेक्शन हो जाती है आपके मन में, तो फिर आप उसका एक रफ ड्राफ्ट बनाइए कि इंट्रोडक्शन में मुझे ये पॉइंट्स लिखने हैं. फिर उसके बाद आप उसका मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स को रखिए. फिर आप देखिए कि बॉडी में आप क्या लिखोगे, उसके काउंटर में आप काउंटर आर्ग्यूमेंट्स जो होती है, अगर आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक है तो उसको आप कैसे फ्रेम करोगे, और फिर कंक्लूजन में आपके क्या पॉइंट्स बनेंगे. तो जब पॉइंट्स आपके पास हो जाएंगे देन यू कैन फिल्टर एंड यू कैन ऑल्टर द थिंग्स दैट कि इंट्रोडक्शन में मेरा क्या अच्छा लगेगा, बॉडी में क्या अच्छा लगेगा, और कंक्लूड मुझे कैसे करना है. सो एक रफ ड्राफ्ट विल
रिक्वायर मोर टाइम देन दी फेयरिंग ऑफ दी ऐसे। ओके, रफ ड्राफ्ट अगर आप थॉटफुली बनाओगे तो आपको उसको फेयर में जॉट डाउन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस पार्ट को हमें बहुत ही अच्छे से और बहुत ही अटेंटिवली करना है। डिटेल्ड ड्राफ्ट ऑफ द रफ वर्जन। अब एक बार आपने रफ बना लिया तो उसके बाद जो आपने पॉइंट्स, जो आपने एकदम सब टॉपिक्स यूज़ किए होंगे, तो उनको आप जो सब हेडिंग्स रहेंगे उनको आप कैसे एलैबोरेट करोगे वो आपको इस वाले पोर्शन में देखना है। एंड देन यू विल फाइनली आर्टिकुलेट योर एसे, दैट इज़ आप उसको फेयर मैनर में प्रेजेंट कर दोगे in the way you want it, with all the quotes, with any story or whatever it is, after this both uh, stages are done with, right? Now do's for an effective essay। अब यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आप लोग को एक इफ़ेक्टिव ऐसे लिखने के लिए, अच्छा निबंध लिखने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैंने यहाँ क्यों लिखा है सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, क्योंकि नोबडी लाइक्स, अगर आज मान लो मैं कुछ बोल रही हूँ एंड आपको उसके लिए अगर एक डिक्शनरी खोल के बैठने की रिक्वायरमेंट हो तो यू विल गेट बोर्ड, राइट? दैट डज़ नॉट मीन कि आपके पास कुछ गुड वर्ड्स है तो आप उसे यूज़ मत कीजिए, वोकेबलरी है तो यूज़ मत कीजिए, बट इट इज़ नॉट अ disadvantage। ओके, फॉर पीपल हु डोंट नो, इट इज़ नॉट अ डिसएडवांटेज। यूपीएससी इज़ वेरी वेल अवेयर कि बहुत सारे बैकग्राउंड्स के बच्चे इस एग्ज़ाम को लिखते हैं। सो देर इज़ नो सेट क्राइटेरिया एज सच। एंड कभी भी कोई भी मिथ को बिलीव करने से पहले खुद देखिए कि जो यूपीएससी ने ऐसे पेपर के बारे में कुछ जो गाइडलाइंस निकाली है उसमें क्या लिखा हुआ है। सो दिस ऑल हैव बीन फ्रेम्ड कीपिंग इन माइंड द गाइडलाइंस ऑफ यूपीएससी। हेंस आई से यू टू यूज़ सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। अगर आपकी लैंग्वेज क्लियर रहेगी तो एग्जामिनर के लिए भी इट विल बी ईजी। देर आर अ लॉट ऑफ कॉपीज़ दैट नीड टू बी चेक्ड। अगर आप क्लियरली अपने पॉइंट को कन्वे कर रहे हो तो उससे बेहतरीन कुछ भी नहीं हो सकता, राइट? नेक्स्ट वील कम टू स्टिक टू शॉर्ट एंड पावरफुल स्टेटमेंट्स। कभी भी वेग स्टेटमेंट्स मत लिखिए कि आपके पास मैटर नहीं आ रहा है, आपने एक ही स्टेटमेंट को दो तरीके से दो बार दोहरा दिया। ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है बिकॉज दैट इज़ अ टर्न ऑफ फॉर द एग्जामिनर। दे विल अंडरस्टैंड दैट दिस पर्सन इज़ जस्ट ट्राइंग टू बीट अराउंड द बुश। दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक ओपिनियन एंड दे डोंट हैव द वे टू आर्टिकुलेट। एंड दैट ऑल्सो, ऐसे को आप सिर्फ ये मत समझिए कि आपकी इंग्लिश चेक हो रही है, उससे आपका इंटायर थॉट प्रोसेस चेक हो जाता है कि आपका किसी टॉपिक पे क्या स्टैंड है, राइट? एंड अगर आपका कोई स्टैंड है तो आप दूसरे तरफ वाले जो स्टैंड लेने वाले लोग होते हैं उनसे कितने सहमत होते हो, कितना आप उनके पॉइंट्स को एक्सेप्ट कर सकते हो, एंड आपके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स वैलिड हैं कि बस जस्ट बिकॉज यू हैव टेकन अ स्टैंड सो यू विल just stick to it and say utter nonsense। Okay, so you have to be very clear on all of this। It is basically like a personality checkup only, this essay paper। so you will stick to short and powerful statements। शॉर्ट स्टेटमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आपके सेंटेंसेस बहुत लेंदी और क्लमजी हो जाते हैं तो वो मीनिंग अच्छे से बाहर नहीं आ पाती है। एंड व्हेन योर सेंटेंसेस आर शॉर्ट पीपल विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे इन अ मोर क्रिस्टल क्लियर मैनर। यूज़ डिसेंट वोकेबलरी ओवर बेसिक। अब जैसे मैंने पहले फर्स्ट में आपको बोला कि यू डोंट हैव टू यूज़ वेरी बॉम्बार्डिंग लैंग्वेज, बट अगेन बहुत ही बेसिक चीज़ है। अब जैसे वेरी नाइस को आप वेरी नाइस नहीं लिख करके यू विल राइट दैट इट वॉज अट्रैक्टिव। ओके, इन वट एवर वे। फॉर एग्जाम्पल वेरी इट वॉज फुल ऑफ लव, तो आप अफेक्शनेट लिख दोगे। सो दिस इज़ नॉट वेरी हाई लेवल इंग्लिश ऑल्सो एंड दिस इज़ नॉट वेरी बेसिक ऑल्सो। सो दैट इज़ हाउ यू नीड टू बिल्ड अप योर vocabulary and you have to try to use those words, क्योंकि let's face it, essay is again a part of your grammar। ठीक है, तो अगर आप इसमें ग्रामेटिकल एरर्स करोगे या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स करोगे या फिर आपके वर्ड्स बहुत, तो दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ डिसएडवांटेज फॉर यू। सो वील ट्राई टू यूज़ डिसेंट वोकेबलरी। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। दिस वर्ड्स कैन बी पिक्ड अप ओवर टाइम इवन इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड। ओके, लिमिटेड यूज़ ऑफ फ्रेजेस इज़ एज वर्दी। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि हमें हमें सुनने में आता है कि फ्रेज कोट्स ये सब बहुत पसंद करते हैं एग्जामिनर्स, राइट? सो फॉर दैट व्हाट वी डू कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं भी है वहाँ पे भी, क्योंकि हम लोग प्रिपेयर करके जाते हैं तो हमारा एक टेंडेंसी हो जाता है कि सिंस वी नो दिस वी नीड टू पुट इट इन द पेपर। सो डोंट ट्राई टू डू दैट। लिमिटेड यूज़ कीजिए फ्रेजेस को ताकि जहाँ आप यूज़ कर रहे हो उसकी रेलिवेंस अच्छे से बाहर निकल के आए एंड फिर वो कैची भी हो एग्जामिनर के लिए कि हाँ, इफ़ देर इज़ अ राइट यूसेज ऑफ अ फ्रेज एंड कोट देर इज़ नथिंग बेटर देन दैट। बट इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इट इन द अप्रोप्रिएट प्लेस तो दैट विल मेक थिंग्स go against you।
सो दैट इज़ वाई डोंट ट्राई टू बिलीव दिस मिथ कि नहीं अगर आपको आता है तो आपको उसको पेपर पे स्पिल करना है. डोंट डू दैट. ओनली इफ़ योर टॉपिक has certain meaning related to that phrase or quote, and if you're discussing that very point, then you can use it. कैची सब हेडिंग्स डिज़र्व अटेंशन. तो सब हेडिंग्स क्यों डालते हैं, ताकि जब आप बहुत ही पैराग्राफ वाइज लिखने चले जाते हो ना ऐसे में, तो फिर अगर आप कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं करोगे तो वो अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होंगे तो मिस हो जाएंगे. दैट इज़ वाई व्हाट समटाइम्स द स्टूडेंट्स दे डू एंड दे गेट गुड मार्क्स इज़ बिकॉज दे डिवाइड देयर ऐसे इनटू सब हेडिंग्स. तो वो हाईलाइटेड पोर्शंस डेफिनेटली आँख में आ जाते हैं. इवन इफ द एग्जामिनर वॉज ऑन द वर्ज ऑफ मिसिंग इट, he won't miss it, he or she won't miss it, and that is why it will garner the attention, and if it is appropriate it will definitely fetch you extra marks, right? यूसेज ऑफ अप्रोप्रिएट कोट्स वो मैंने डिस्कस कर लिया है. इक्वल इंपॉर्टेंस टू बोथ दी एसेज. एज आई टोल्ड यू कि एक ऐसे आपने बहुत ही शानदार लिख दिया तो ऐसा तो है नहीं कि 125 में आपको 100 मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राइट? सो यू विल, इफ़ यू आर सपोज टू गेट 60, यू विल गेट 65 और 70 फॉर दैट मैटर, ओके. बट अगर आपने दूसरे ऐसे में कॉम्प्रोमाइज़ किया है तो वहाँ तो आपको अगर 60 मिलना था और 30 मिलता है, तो ये 5 या 10 मार्क्स का गेन आपके उस लॉस को कवर नहीं करेगा. दैट इज़ वाई वील फोकस ऑन बोथ दी एसेज इक्वली एंड विल ट्राई टू गेट अ डिसेंट स्कोर इन बोथ दी एसेज, ताकि वी कैन मैक्सिमाइज आवर स्कोर्स हियर एंड स्टिक टू द टॉपिक. कभी कभी क्या होता है, टॉपिक पिकअप कर लेते हो. अगेन यहाँ पे वो इशू फर्स्ट वाले चीज़ पे चली जाती है कि गलत टॉपिक अगर सेलेक्ट कर लिया तो यू विल कीप बीटिंग अराउंड द बुश. आप कभी पॉइंट पे आ ही नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास पॉइंट रहेंगे ही नहीं लिखने के लिए. Hence, you have to, for sticking to the topic, you should definitely do a good homework when you're making the rough draft of the essay and when you're selecting a topic, right? So ये कुछ do's हैं जिससे आपका निबंध एक अच्छा निबंध कहलाएगा. डोंट्स और थिंग्स टू अवॉइड. कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्नामेंटल लैंग्वेज. बहुत ही जार्गन्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, बहुत ही लॉन्ग सेंटेंसेस यूज़ कर दिया, क्रिस्टल क्लियर कोई मीनिंग आ ही नहीं रही है, कंसाइज है नहीं, समझ नहीं आ रहा एग्जामिनर को, तो डू यू थिंक एनीबडी विल लाइक इट? इफ़ यू आर रीडिंग समथिंग, एक लह बना हुआ रहता है एंड बीच में यूर सीन कि इतने क्लमजीली लिखा हुआ है, तो इट विल डेफिनेटली, यू विल नॉट फील लाइक प्रोसीडिंग फर्दर. सो ट्राई टू अवॉइड दैट. कोई भी जार्गन्स होते हैं, कम्प्लेक्स लैंग्वेज होती है, उसको अवॉइड कीजिए. एक सिंगल डायमेंशन पे आप बोले जा रहे हो जस्ट बिकॉज आपके पास दूसरी टॉपिक पे कुछ लिखने को नहीं है, तो वो भी आपके अगेंस्ट में चला जाएगा, बिकॉज दैट विल शो दैट यू आर नॉट फुली अवेयर ऑफ वॉट इज़ वॉट टॉपिक यू हैव सेलेक्टेड, एंड इट विल शो अ लैक ऑफ नॉलेज, जो कि होना नहीं चाहिए. इन अ सीरियस यूपीएससी कैंडिडेट यू विल डेफिनेटली हैव रिक्वायर्ड नॉलेज. सो दैट इज़ वाई हाउ यू प्रेजेंट इट, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. नॉलेज आपके पास रहेगा, बट अगर आप एक डायमेंशन पे इतना ज़्यादा फोकस कर दोगे तो आप किसी ना और डायमेंशन पे ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होगे. अवॉइड मन की बात. अब जो मन की बात होती है ना, कि हमारा नोशन होता है कि ऐसा ही है, तो वो सारी चीज़ों को प्लीज़ पेपर में मत स्पिल कीजिएगा. इफ़ देर आर एनी पॉलिटिकल व्यूज़ यू होल्ड, फॉर एग्जाम्पल, so try to keep that to yourself. Don't spill it on the paper, guys. Definitely when you're having a stand for a topic, you also have to keep in mind that the other person can have a different stand. अगर एग्जामिनर का दूसरा स्टैंड है जो आपका नहीं है, तो यू जस्ट कांट राइट वट एवर यू फील लाइक, ओके. दैट विल अगेन बिकम अ प्रॉब्लम फॉर यू एंड दैट विल स्क्रू अप योर मार्किंग in the essay paper. So try to avoid all of this. एक्सट्रीम और अनपॉपुलर ओपिनियंस को हम लोग बिल्कुल प्रेजेंट नहीं करेंगे. इफ़ देर आर एनी एक्सट्रीम मेजर्स, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड देन यू आर शोइंग इंडिया इन बैड लाइट, और यू आर ट्राइंग टू गिव अ सल्यूशन विच इज़ अगेंस्ट इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, then that will be a big no-no, right? Because then that shows that if you are in power, you might not be able to take the right decision. So as I told you कि essay paper highlights about your competency. It also highlights what you hold, what thoughts you hold in your mind, okay. It's more of a personality check before your interview. So that is why we'll avoid things that have controversies or might create controversy. डू नॉट स्पिल योर नॉलेज ऑल ओवर, पेस योर फ्लो, ओके. नॉलेज तो बहुत हो जाती है यूपीएससी के लिए पढ़ते पढ़ते, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमें ऐसे पेपर में डालना ही है. बहुत कुछ अगर समझ भी आ रहा है, बट इफ़ इट इज़ नॉट रेलिवेंट, तो उसको हम लोग अवॉइड करेंगे. अवॉइड पेसिमिज्म. पेसिमिज्म इज़ बेसिकली अ नेगेटिव टोन, ऑप्टिमिज्म इज़ पॉजिटिव टोन. तो ऑप्टिमिस्टिकली लिखेंगे, जो भी सोल्यूशन इन दी एंड देंगे. कुछ प्रॉब्लम्स अगर हमने डिस्कस की है तो उसके सोल्यूशंस भी हमें देने होंगे, बिकॉज एज अ सिविल सर्वेंट यू विल बी रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स and also find solutions and deal with them, right? So we'll avoid negative
things and we'll try to see that what is the positive note we can take out from the topic. Now, some examples from do's and don'ts. It was raining heavily. He had to reach his office early as he was carrying very important papers. He would have to submit them in dry condition. As he refused to take an umbrella, the papers got wet and damaged. अब ये एक एग्जाम्पल है. दूसरा है, he had to reach his office early, as he was carrying very important papers which would have to be submitted in a dry condition. But as he refused to take an umbrella, though it was raining heavily, the papers got wet and damaged. So as an individual, आपको दोनों में से कौन से पढ़ने में अच्छा लगेगा? Definitely the first one, because it's more comprehensive. It has this full stops, it has short sentences and structuring अच्छे से की गई है. अगर आप सेकेंड वाला डायरेक्टली पढ़ लोगे तो देर आर सो मेनी कॉमास एंड देर इज़ नो एंड, सो यू विल डेफिनेटली लूज ट्रैक ऑफ व्हाट द स्टूडेंट इज़ ट्राइंग टू कन्वे. अब ये तो एक सिंपल मैटर है, तो भी यहाँ पे आपको समझ आ जा रहा है कि फर्स्ट वाला इज़ बेटर. बट इफ़ यू आर राइटिंग समथिंग ऑन अ डीपर टॉपिक देन डेफिनेटली दिस सेकेंड मेथड अगर आप एम्प्लॉय कर रहे हो तो वो बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा. सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल जो हमने डूज एंड डोंट्स डिस्कस किए हैं उसमें से. Second, after World War II, while the North American and European nations championed capitalism, USSR put communism at the forefront. This ideological clash between the superpowers led to several proxy wars, a nuclear arms race, and a rapid deterioration of world security. So you're getting the topic. यहाँ पे तो समझ आ रहा है what they are trying to say. अब यहाँ second example में क्या कह रहे हैं? At the end of World War II, on the one hand, while capitalism was successfully championed by the nations in North America and Europe, on the other hand, it was USSR that put communism at the forefront, due to which there was an ideological clash between the two superpowers, which had led to proxy wars in various parts of the globe, a nuclear arms race, and a rapid deterioration of the security of the world. So this is so clumsily put, right? Again, avoid, they have not used full stops, they've not ended the sentences at the right place, and that is why it is lacking coherence, it is lacking clarity, it is lacking conciseness. So these are some of the C's which are very very important while you are writing an essay. सो आई हैव डिस्कस्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी और डाउट्स है तो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी एंड आस्क इट टू मी इन द कॉमेंट सेक्शन. That's about it guys. I just wanted to discuss the essay paper in quite a bit of details ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको इस पेपर में कितना फोकस करना है और कैसे डील करनी है. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड.